اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیر خان یوسف زئی، رائلز کمیونٹی پاکستان کا پاؤنڈر لیڈر ہوں۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں میٹا پورس کے لیے۔ آج کا سیشن میں کوشش کر لوں گا شارٹ سے شارٹ ہو۔ اگر کسی بندے سے مس بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بعد میں جہاں سے آپ لوگوں کو لنک ملا ہے اسی کے تھرو آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں نے اگر کسی کو دینی ہو تو آپ لوگ اسی سے ریکارڈنگ منگوا کے یوٹیوب کا جو لنک ہوتا ہے وہ اپنے ڈاؤن لائن میں کسی کو دے سکتے ہو۔ تو میٹا پورس آج جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم آج کا سیشن اس طریقے سے شروع کریں گے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میٹا پورس ہمیں کیوں کرنا چاہیے، بہت سارے پلیٹ فارم ہے مارکیٹ میں، تو ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ سارا سب کچھ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے پلان کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھو، پیسہ کمانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے کے لیے لوگ 7 سمندر پار جاتے ہیں، پردیس میں جا کے دن دیہڑے اندھیروں میں، بارشوں میں، سردی میں، گرمی میں محنت مزدوری کر کے 8-8 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد مہینے بعد ان کو ایک مرتبہ سیلری مل جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پالنا ہوتا ہے، اپنے پیاروں کو پالنا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، جن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ یا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پارٹ ٹائم اگر کوئی جاب کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنے ایجوکیشن کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ میں اپنے آپ خود اٹھا سکوں۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتا ہے دنیا جدید ترین ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کمپیوٹر کا جب شروعات ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر کے شروعات کے زمانے میں یہ سی ڈی وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا فلاپی ڈسک اس کو بولتے تھے، ایک چھوٹا سا ڈسک ہوتا تھا، وہ ڈال کے اگر آپ نے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا، کوئی بھی چیز، تو وہ فلاپی کے مدد سے آپ لوگ اس کو کر سکتے تھے۔ کلر کچھ بھی نہیں تھا، ایم ایس ڈوس کا اسکرین تھا، ہر کمانڈ آپ لوگوں کو مینولی ڈالنا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ سارا سب کچھ کرتے تھے۔ پھر ونڈو آ گیا، ونڈو کے بعد سی ڈی، ڈی وی ڈی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، موبائل فون دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سٹارٹ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے موبائل فون ہوتے تھے، 3310، پتہ نہیں کتنے کتنے موبائل ہونے کے بعد ابھی آج کل زمانہ کیا ہو گیا، اسمارٹ فون۔ بیسیکلی اسمارٹ فون جو ہم یوز کر رہے ہیں، یہ اسمارٹ فون صرف اور صرف ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے فیس بک یوز کر لیں، ہم اس سے یوٹیوب کو دیکھ لیں، ہم اس سے ٹک ٹاک دیکھ لیں، ہم اس سے ویڈیوز دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، یا بہت کچھ دیکھ لیں۔ یہ موبائل فون اگر آپ لوگ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کے استعمال میں لاؤ گے تو آپ لوگ اس موبائل فون سے گھر بیٹھے ماہانہ لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہو۔ اور وہ کیسے کمائیں گے، اس کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو طریقہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، جو سسٹم ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، اگر آپ لوگوں نے یہ سسٹم سیکھ لیا اور یہ سسٹم سمجھ لیا تو کم سے کم آپ لوگ کل کسی کو یہ نہیں کہو گے کہ آن لائن ارننگ میں ہمارے ساتھ سکیم ہو گیا تھا، کیونکہ آن لائن ارننگ ظاہر سی بات ہے پیسہ بے ایمان چیز ہے، اور پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑواتا ہے، دوستوں کو دوستوں سے لڑواتا ہے پیسہ۔ اس طریقے سے اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرض دیا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے کسی کو قرض بھی دیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ وہ قرض مانگتے بھی ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے احسان کیا تھا، اس کو قرض دیا تھا، وہ قرض آپ دوبارہ اس سے مانگ رہے ہو تو اس کا منہ بنے گا، پیسے آپ کے اپنے ہوں گے، لیکن وہ جب دینے کی باری آ جاتی ہے ان کے منہ بن جاتے۔ کچھ لوگ تو دیتے ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، لیکن ٹائم سے ڈیلے کر کے، کیونکہ پیسہ ہر ایک بندے کو پیارا ہوتا ہے۔ تو ہم جس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں میٹا پورس، بیسیکلی یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے۔ ڈی سینٹرلائز سے مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز میں۔ ایک ہوتا ہے سینٹرلائزیشن، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک دکان بنا لیا، دکان بنانے کے بعد اس دکان میں اس نے جتنا بھی لیبر رکھ دیا، ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہے نکال لے، جس کو چاہے رکھ لے، ٹھیک ہے،
हर सारा सब कुछ जो दुकान का है उसी बंदे का है, जो मालिक है तो समझ लो मालिक का ही मर्जी चलेगी। मालिक ने सेलमैन को बोल दिया भाई जाओ छुट्टी, वो छुट्टी करेगा, भाई आपने छुट्टी नहीं करनी है, वो छुट्टी नहीं कर सकता। इस तरीके से एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो जाता है कि जो एक सिस्टम होता है, एक प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर एक दुकान है, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ। एक दुकान है, दुकान ले लो, वो दुकान 3-4 भाइयों ने मिलके बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अब 3-4 भाइयों ने मिलके दुकान बना लिया और फिर उन लोगों ने ये अहद कर दिया कि इस दुकान में जो भी बंदा आएगा, लेबर में से जो भी बंदा आएगा वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। इक्वल से मतलब जो अथॉरिटीज जो एक्सेस हमारे पास है वही एक्सेस सेम टू सेम उस बंदे के पास भी होगा, जो इम्पॉसिबल है। कोई भी बंदा किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता कि पैसा भी लगा दे, लगाने के बाद फिर किसी बाहर के बंदे को ले आके सिस्टम पे बिठाए कि भाई मैं भी मालिक हूँ आप भी मालिक हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं करता। कि 100 में से एक बंदा, 2 बंदे ऐसे होंगे जो बाद में पछताएंगे। लेकिन ये हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम बेसिकली ये ब्लॉक चेन पे काम करते हैं। अब ब्लॉक चेन क्या चीज है? ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है, डिजिटल एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोग कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव कर लेते हो तो उसके लिए कोई फोल्डर बना लेते हो। उस फोल्डर्स में अगर कोई चीज डाल दिया, 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकचेन में जब भी कोई नया मेंबर आ जाते हैं उसका अलग एक ब्लॉक बन जाता है। ये नहीं है जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के कंप्यूटर में डेटा, मिसाल के तौर पर आप लोगों का मोबाइल हो गया या कंप्यूटर हो गया, आप लोगों का जो मेमोरी होती है वो मेमोरी फुल हो जाती है। अब आपने दूसरा कोई डेटा उसमें डालना है, वो डेटा के लिए जगह नहीं है। आपका सिस्टम आपको शो कर रहे हैं कि आपके पास सिस्टम में जगह नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको पुराना कोई फाइल डिलीट करना होगा, तब जाके नया फाइल आप उसमें डाल सकते हो। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में क्या होता है, शुरू वाले दिन से जब सिस्टम बन जाता है, पहला बंदा जैसे सिस्टम में आ गया उसका ब्लॉक बन गया, दूसरा बंदा आएगा उसके बाद उसका ब्लॉक बनेगा, तीसरा आएगा उसके बाद उसका ब्लॉक बनेगा, चौथा आएगा उसके बाद उसका ब्लॉक बनेगा। इस तरीके से ये सिस्टम जो है, ये ब्लॉक के मध्य में इस तरीके से हर एक बंदे का एक एक ब्लॉक बन जाता है। अब एक एक ब्लॉक बनने के बाद होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि सिस्टम में जितने भी बंदे ज्वाइन हो गए, वो पूरे सिस्टम का डेटा और पूरे सिस्टम का एक्सेस हर एक बंदे के पास चला जाता है। अब ये सिस्टम है मेटाफोर्स, इसको बनाया किसी एक इंसान ने है, ठीक है। उसका नाम मिस्टर लाडो है, रशियन है। उसने उस सिस्टम को बनाया है, लेकिन बनाने के बाद जब उसको ब्लॉकचेन को दे दिया तो ब्लॉकचेन के बाद जिसने इस सिस्टम को बना लिया उसका एक्सेस उसमें से खत्म हो गया। एक्सेस खत्म हो गया। और जितने भी कम्युनिटी अभी इस टाइम रिसेंटली अगर मैं दिखा सकूं आप लोगों को, तो तकरीबन 5,70,000, 5,75,000 या 5,80,000 इतने बंदे अभी इस सिस्टम में 3 महीने में इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेटाफोर्स का जितना भी एक्सेस है, जितना भी होल्ड है, वो जितने भी मेंबर इसमें काम करते हैं पूरे लोगों के पास है। वो किस तरीके से है आप लोगों को मैं कुछ दिखा देता हूं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये मैंने अपनी आईडी आप लोगों के सामने ओपन की है। ये मेरा डैशबोर्ड है, आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे कि जहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, किसी और बंदे का अकाउंट आप लोग ओपन नहीं कर सकते। लेकिन मेटाफोर्स ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप किसी का भी अकाउंट ओपन करके चेक कर सकते हो कि इस बंदे ने कितना पैसा कमाया है, कैसे कमाया है, कहां से कमाया है। हर ट्रांजैक्शन आप लोग चेक कर सकते हो। इतना ये साफ और शफाफ है। मतलब एक तो ये है कि इसको चलाने वाला कोई एक बंदा नहीं है, ठीक है। इसको होल्ड और एक्सेस करने वाले कम्युनिटी के जितने भी मेंबर है वो सारे होंगे। तो ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अप्लाइनर लिखा हुआ है। अप्लाइनर के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइनर की आईडी। अब अगर मैं अपने अप्लाइनर का आईडी ओपन करना चाहूं तो मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं। इसका आईडी नंबर मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करके मैंने पॉइंट कर दिया, तो मेरे अप्लाइनर की आईडी ओपन हो जाएगी। ये देखो मेरे अप्लाइनर की आईडी ओपन हो गई। इस तरीके से आप लोग जिसका भी आईडी ओपन करना चाहो आप लोग इसको ओपन कर सकते हो।
यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है कि आपने पासवर्ड लगाया है या कुछ लगाया है। तो यहाँ पे ये ओपन सोर्स है, हर एक बंदे के लिए खुला है, चाहे वो मेटापोर्स में ज्वाइन है या मेटापोर्स में ज्वाइन नहीं है, वो किसी का भी अकाउंट यहाँ पे ओपन करके चेक कर सकते हैं कि ये बंदा मुझे झूठ बोल रहा है या मुझे सच बोल रहा है। दूसरा दूसरा इस सिस्टम की स्पेशलिटी ये है, ठीक है, कि इस सिस्टम को बनाने वाला जो बंदा है मिस्टर लाडो, वो हमारा इक्वल पार्टनर है। आप लोगों ने देखा होगा, एक बंदे ने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बनाई है, कोई वेबसाइट बनाया हुआ है, उसने एक मर्तबा पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसने टीम बना ली या उसने मेंबर लेके आए, मेंबर लगा दिए, तो फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, वो आराम से सुकून से बैठा होता है, और वो मेंबर्स जो उस वेबसाइट पे काम करते हैं या उस कंपनी में काम करते हैं, पैसा भी वो लेके आते हैं, मेहनत भी वो करते हैं, और कंपनी का मालिक आराम से सुकून से घर बैठा होता है, पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, हमारे सिस्टम में ये होता है कि जिसने इस सिस्टम को बनाया है वो हमारा इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर से मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें सिस्टम से इनकम आती है, उस तरीके से उस बंदे के पास भी सिस्टम से इनकम जाती है। हमें सिस्टम से इनकम किस तरीके से आती है, जब हम टीम बनाते हैं, जब हम टीम वर्क करते हैं, जब हम मेंबर बनाते हैं, जब हम रैपर लेके आते हैं, उससे हमें इनकम होती है। तो इस तरीके से आईडी नंबर 1 वाला बंदा जिसने सिस्टम बनाया, जो सिस्टम का मालिक है, वो भी इस सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से पैसे बना सकता है जिस तरीके से हम बनाते हैं। अगर उसके लिंक से कोई बंदा अकाउंट लगाएगा वो पैसा कमा लेगा, अगर उसके लिंक से कोई बंदा अकाउंट नहीं लगाएगा वो कुछ भी नहीं कमा सकता। एक और पॉइंट आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं कि महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ठीक है, पहले सिस्टम पैसा दे रहा था, फिर उसके बाद सिस्टम ने पैसा देना बंद कर दिया। वो क्यों करते हैं? बेसिकली वो इस तरीके से होता है कि जब आप लोगों का पैसा कंपनी के पास जाएगा या कंपनी का पैसा आप लोगों के पास आएगा, तो इस बिटवीन इसमें से कोई ना कोई बंदा बेईमान हो सकता है। कंपनी के पास आपका पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, कंपनी बेईमान हो गई, उसने विड्रा रोक दिया। कंपनी, आप लोग फिर वेबसाइट कहते हो, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहते हो, मैसेज आ जाते हैं, जैसे आजकल एनजीआर का लोग कह देते हैं, एनजीआर भाग गया, लोगों का करोड़ों रुपए लेके चूना लगा गया। हमारे सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में हमारा पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, हमारा पैसा एक बंदे के वॉलेट से निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपए, मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूं, अगर 100 रुपए आपके वॉलेट से निकल गए, ठीक है, तो ये 100 रुपए ऐसे जाएंगे, आपके वॉलेट से निकल गए, ऐसे आगे जिस बंदे के पास जाने थे वो पूरे 100 के 100 उसी टाइम उसके वॉलेट में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा सेंट्रलाइज की तरह कि ये $100 पहले, 100 रुपए पहले चले जाएंगे कंपनी के ऑनर के पास, ऑनर उसमें से अपना हिस्सा रख देगा और बाकी जिसको भेजने थे उसके पास भेज देगा। इस तरह कोई सिस्टम नहीं होता। हमारे सिस्टम में थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी से मतलब एडमिन नहीं है, ऑनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है। एक वॉलेट से पैसा निकलेगा, जितना निकल गया वो उसी दूसरे वॉलेट में जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है। और एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ ऐड कर दूं कि हमारे सिस्टम का ताल्लुक किसी इंसान के साथ नहीं है, हमारे सिस्टम का ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ है, ब्लॉकचेन के साथ है। जब तक आप लोगों के पास, आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होगा, आप लोगों के पास इंटरनेट का सिस्टम होगा, एक्सेस होगा, ये सिस्टम आप लोगों के लिए लाइफ टाइम काम करता रहेगा। जब तक आप लोग उसको चलाना चाहोगे ये चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि आज आप लोगों ने सिस्टम ज्वाइन कर दिया, महीना हो गया, 2 महीने हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया और मेटाफोर्स बंद हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए बंद नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन यही है कि जिस बंदे ने इस सिस्टम को बनाया हुआ है वो तो अकेला बंदा है, वो चाहे जब मर्जी सिस्टम को बंद कर ले। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी इस सिस्टम को एक्सेस करते, इस सिस्टम को होल्ड करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस सिस्टम को अब मैं चाहता हूं मैं बंद कर दूं, तो मैं तब बंद करूंगा जब इस कम्युनिटी के हर एक मेंबर मुझे इजाजत देगा। जब मैं इसमें कोई चेंजेस करूंगा तो जितने भी मेंबर हैं मुझे उससे इजाजत लेने की जरूरत होगी। अब अगर 100 बंदे मिसाल के तौर पर इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं,
100 में से 99 बंदे एग्री हो गए, मुझे कहते हैं आप या सिस्टम बंद कर दो या सिस्टम में चेंजेस कर दो, लेकिन एक अकेला बंदा है वो एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि भाई क्यों सिस्टम बंद करना है या क्यों चेंजेस करनी है, मेरे पैसे है इस सिस्टम में, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं सिस्टम चेंज नहीं कर सकता, ना मैं सिस्टम को बंद कर सकता हूं। इतना ये सेफ एंड सिक्योर है। तो ये एक इस तरीके से भी नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग है, आप लोगों ने इसमें पैसे डाल लिए, रगड़ लिए और आप लोगों के पास पैसा आ गया। नहीं, जिस तरीके से आप लोग बिजनेस शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पैसे की जरूरत होती है। पैसे के बाद फिर आप लोग क्या करते हो, उसको टाइम देते हो, मेहनत करते हो, सुबह से शाम आप लोग बैठे होते हो किसी ऑफिस में या अपने दुकान में, आप लोग कस्टमर के इंतजार में होते हो। तो ये भी एक बिजनेस है, यहाँ भी आप लोगों को कस्टमर की जरूरत होती है। चूंकि हम काम ऑनलाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे कस्टमर भी ऑनलाइन मिलते हैं, और वो ऑनलाइन कस्टमर आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पाकिस्तान में फेसबुक हर एक बंदा यूज करता है, चाहे एजुकेटेड है या चाहे एजुकेटेड नहीं है, फेसबुक का अकाउंट हर एक बंदे का लाजिम होता है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है किसी को खाने पीने का शौक होता है वो खाने पीने के ग्रुप्स ज्वाइन करता है, किसी को नाच गाने का शौक होता है वो नाच गाने वाले ग्रुप ज्वाइन करता है। लेकिन अगर किसी को पैसे कमाने का शौक होगा तो उसने ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे। आप लोग भी ज्वाइन कर लो, आप लोग खुद भी देख लोगे कि यहाँ पे मोबाइल फोन से लोग घर बैठे कितने पैसे कमाते हैं। सीधा सीधा हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। मेटापोर्स बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्रोग्राम है। मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। यहां पे देख ले, ये आप हो, ये आप बैठे हुए हो, आपके नीचे दो बंदे लग गए हैं, और अब हर एक बंदे के नीचे इस तरीके से दो दो बंदे बन जाते हैं। ठीक हो गया, इसको 2x2 मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके नीचे भी दो बंदे लगेंगे, ठीक हो गया, फिर इसके नीचे भी दो बंदे लगेंगे, इसके नीचे भी दो बंदे लगेंगे, और उसके नीचे भी। इस तरीके से हर एक बंदे के नीचे दो दो बंदे लगते हैं। टोटल इस सिस्टम में 12 लेवल है। ठीक हो गया, मार्केटिंग क्लासिक का जो है इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल है। बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है। हर एक बंदा अगर लेवल 1 से शुरू कर ले और दिल लगा के वो मेहनत करेगा तो 2-3 महीने के अंदर वो 12 लेवल तक कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे 12 लेवल तो है, लेकिन इन 12 लेवल्स में आप लोग देख सकते हो राउंड राउंड छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं। किसी में 6 गोले बने हुए हैं तो किसी में 3 गोले बने हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप लोग देख ले 8 लेवल जो आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको S6 बोलते हैं। S6 से मतलब कि ये 6 बंदों का स्लॉट होता है, इसमें 6 पोजीशन लगती है, 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं। और एक आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसमें 3 गोले बने हुए हैं, इन 3 गोले वाले को बोलते हैं S3। मतलब आप लोगों के नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 पोजीशन लगती है, 3 बंदों की पोजीशन लगती है। अब यहाँ पे गौर कर ले, दो तरह के मैट्रिक्स है, दो तरह से डिजाइन किए गए। अब ये 8 वाला मैट्रिक्स जो है, जो 8 लेवल है जिसमें 6-6 बंदे लगते हैं, इसको बोलते हैं टीम फोर्स मैट्रिक्स। टीम फोर्स मैट्रिक्स क्या होता है, टीम फोर्स मैट्रिक्स ये होता है कि इन 8 लेवल में आप लोगों को टीम के वर्क से भी पैसा आता है। वो किस तरीके से, आप जिसके लिंक से ज्वाइन हो गए, वो जो आपका अपलाइनर होता है, आपके अपलाइनर और उसके टीम के जितने भी मेंबर है वो काम करेंगे, उससे भी आपके पास पैसा आएगा। आपने मिसाल के तौर पर किसी मेंबर को ऐड कर दिया है, वो मेंबर आगे काम करेगा, उससे भी आपको इन 8 लेवल में पैसा आ सकता है। आपका क्रॉस लाइन जिसको बोलते हैं, अपलाइनर के लिंक से जो बंदे ज्वाइन करते हैं बाकी के लोग, वो आपके क्रॉस लाइन कहते हैं। कोई सीधे हाथ बैठा होता है, कोई जो होता है वो उल्टे हाथ बैठा होता है, वो भी जब आगे काम करते हैं उससे भी आप लोगों के पास पैसा आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों को, आप जब डायरेक्ट मेंबर लगाते हो इससे भी पैसा आता है, ऊपर से आया, नीचे से आया, जहां से भी आया। मतलब आप लोगों को 4-5 तरीकों से यहाँ इन 8 लेवल में से, जिसमें 6-6 बंदे लगते हैं, यहाँ से आप लोग पैसा कमा सकते हो। फिर हम चले जाएंगे जो 3 वाले गोले होते हैं जिसको S3 बोलते हैं। यहाँ पे गौर कर ले, यहाँ पे आप लोगों के पास जब डायरेक्ट मेंबर होगा, वही मेंबर जो आप लोगों के लिंक से ज्वाइन हो गया हो, अगर उनमें से कोई भी बंदा
इसी लेवल में पोजीशन लेता है, तो जितने का लेवल होगा पूरा का पूरा आप लोगों के पास पैसा आएगा। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो इन 4 लेवल में से आप लोग $1 की इनकम भी नहीं कर सकते। अब हम आगे जाएंगे इस सिस्टम की डेवलपमेंट के बारे में कि ये सिस्टम हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के तो काफी सारे सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जो पहले डिजाइन किया गया हो कि उसमें आप लोगों के लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हो। ये हमारा एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपका लेवल 1 एक्टिवेट है, ठीक हो गया। लेवल 1 आपने एक्टिवेट किया हुआ है और आप काम कर रहे हो। जैसे आप काम कर रहे हो, आपने पहला मेंबर लगा दिया, पहला मेंबर का तो पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ये ऊपर अप्लाइनर के पास चला जाता है। दूसरा मेंबर भी लगा दिया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं जाता, ये अप्लाइनर के पास जाता है या अप्लाइनर के टीम में किसी मेंबर के पास जाता है। अब ये नीचे लाइन में 4 बंदे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूं। व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप लोग पोजीशंस को समझ ले कि किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है, किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ऑटो अपग्रेड मूड के बारे में बताऊंगा कि ऑटो अपग्रेड मूड बेसिकली काम किस तरीके से करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो S6 6 पोजीशन बने हुए हैं, उनको 2 कलर में मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक हो गया। 3 पोजीशन रेड है, 3 पोजीशन ग्रीन है, उसमें मैंने 1 2 3 ऐसे करके लिखा भी है। आप लोग देख सकते हो जो रेड वाले हैं उसको मेंशन किया हुआ है यूर अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी मेंबर के पास ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन जाएगा। और पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, ये 100% ये पैसा आप लोगों के पास आएगा। मतलब 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं एक साइकिल में, उन 6 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है। बाकी 3 बंदों का पैसा, उस पे सबसे पहला हक आप लोगों के अप्लाइनर का होता है, और अप्लाइनर के बाद आप अप्लाइनर के टीम में बाकी जो मेंबर होते हैं उनका होता है। तो ये 3 बंदों का पैसा अप्लाइनर या उसके टीम में किसी मेंबर के पास चला जाता है। और S6 का जो लेवल है जिसमें 3 बंदे लगते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। पोजीशन नंबर 1 100% पैसा आप लोगों के पास आता है, पोजीशन नंबर 2 का 100% पैसा आप लोगों के पास आता है, और पोजीशन नंबर 3 का 100% पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला जाता है। इस तरीके से अब यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से उस पेज पे लेके जाता हूं। यहाँ पे गौर कर ले आप लोग, पहला लेवल $5 का है, दूसरा लेवल $10 का है। अब ऑटो अपग्रेड बेसिकली है क्या चीज, किस तरीके से काम करते हैं। अब आप काम कर रहे हो, सिस्टम में ज्वाइन हो गए, आपने पहला मेंबर लगा दिया, ये पैसा तो आपके पास नहीं आया। दूसरा मेंबर लगा दिया, ये पैसा भी आपके पास नहीं आया, ये ऊपर चले गए ये दोनों पैसे। अब तीसरा मेंबर आपने लगा दिया, जैसे लगा दिया इसका $5 आपके पास आ गया उसी टाइम वॉलेट में। अब चौथा मेंबर जैसे आपने लगा दिया तो चौथे मेंबर का $5, ठीक है, ऑटो अपग्रेड के लिए सिस्टम में स्टक हो गया, ठीक हो गया। अब आपने 5वां मेंबर लगा दिया, जैसे ही 5वां मेंबर लगा दिया आपने, तो ये 5 और 5 मिला के 10 हो गए। 10 होते ही इसने सीधा आपका लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि पता नहीं मेरा डाउनलाइनर मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, मेरी कोई पेमेंट मिस ना हो जाए। यहाँ पे आप लोगों का अगला लेवल सिस्टम आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली ओपन करता रहेगा। अब यहाँ पे आपके 5 मेंबर जैसे पूरे हो गए, आपका ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 मेंबर पूरे हो गए, आपका ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 5 मेंबर पूरे हो गए, आपका ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर 5 मेंबर पूरे हो गए, आपका ये वाला। यहाँ पे 2 मेंबर पूरे हो गए, आपका 7वां लेवल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली लेवल ओपन करते हैं। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये कहे कि मैंने आगे लेवल अपग्रेड नहीं करने हैं, मैंने मिसाल के तौर पर 2 लेवल कर दिए, 3 लेवल कर दिए, 4 लेवल कर दिया, अब इसके बाद आगे मैंने नहीं जाना,
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्लाइड पे लेके जाता हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये एक बंदा है, एक आप लोगों को एग्जाम्पल है, उसका लेवल 1 ओपन है, लेवल 2 भी ओपन है, लेवल 3 भी ओपन है, लेवल 4 भी ओपन है और लेवल 5 भी ओपन है। अब लेवल 6 ओपन नहीं है। तो इसमें ऑटो अपग्रेड वाला ऑप्शन जो है, ऑटो अपग्रेड वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लेवल 5 पे अप्लाई है। वो आप लोगों को सामने नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे 2 सर्कल व्हाइट बनाए गए हैं कि इस 2 बंदों के पैसे से आप लोगों का लेवल 6 ओपन होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये लेवल 5 तक जाना है, लेवल 5 के बाद लेवल 6 नहीं करना है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम ने क्या रखे हुए हैं, वो सिस्टम ने टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से रखे हुए हैं कि लेवल 1 से आप लोगों को पूरा पैसा आएगा, 3 बंदों का पूरा पूरा पैसा आएगा, लेवल 2 से भी आप लोगों को पूरा पैसा आएगा, लेवल 3 से भी पूरा पैसा आएगा, लेवल 4 से भी पूरा पैसा आएगा। अब लेवल 5 आपका लास्ट वाला लेवल है, इससे आगे आपने नहीं जाना है। आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं स्टक हो जाऊं, इससे आगे मैंने लेवल नहीं करने हैं, बस 5 लेवल मेरे लिए पूरे पूरे हैं, तो यहाँ पे गौर कर ले, लेवल 5 में आप लोगों को 100% पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम के मुताबिक ऑटो अपग्रेड मोड आपने ऑफ कर दिया। तो सिस्टम आपको 100% की जगह, ठीक है, ये जो 100% पहले आपको मिलता था, इसकी जगह सिस्टम अभी आपको 75% देगा। बाकी 25% एज ए पेनाल्टी, जिसको जुर्माना बोलते हैं, वो सिस्टम आपसे लेगा, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा वो पैसा, और उसी पैसे से सिस्टम के जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो अच्छे अच्छे नेटवर्कर हैं, उनको रॉयल्टी बोनस मिलेगा जो आगे आने वाला है, क्योंकि अभी तो पोर्स क्लासिक सिर्फ चल रहा है, इसके बाद आगे इसमें बहुत कुछ आएगा, अभी तो फिलहाल ये शुरुआत है। तो अगर आप लोगों ने ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ऑफ करना है, तो जिस लेवल का आप लोगों ने ऑटो अपग्रेड ऑप्शन ऑफ किया है, तो वहां से आप लोगों को 100% पैसा नहीं आएगा, हर मेंबर से आप लोगों को 75% आएगा और 25% आप लोगों से कट होके जाएगा प्रोडक्ट फंड में। यहाँ पे अगर एक और चीज मैं ऐड कर दूं, तो अगर फोर्साज की मैं बात कर लूं, फोर्साज एक सिस्टम है, यहाँ पे आप लोगों का लास्ट वाला लेवल जब भी रिसाइकल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और आप लोगों का अगला लेवल एक्टिवेट नहीं होता, तो इस लेवल का पैसा आप लोगों को नहीं मिलता, इस लेवल का पैसा आप लोगों को नहीं मिलता। मेंबर चाहे आप लोग लगाते जाओ, लेकिन लेवल 5 से आप लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, ये पैसा आप लोगों के अप्लाइनर को गिफ्ट की तरह जाएगा। लेकिन यहाँ मेटापोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग 5वें लेवल पे आके रुक गए हो, बाकी लेवल से आप लोगों को 100% पैसा आएगा, और जो आपका लास्ट वाला लेवल है, वहां से 75% हर एक मेंबर से आएगा, और आप लोग कमाते जाओगे, चाहे जितना साल कमाओ, 2 साल कमाओ, 3 साल कमाओ, 10 साल कमाओ, जब तक आप लोगों ने इस सिस्टम को चलाना हो, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ से पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्टली आगे लेके जाता हूँ। इसमें जो 12 लेवल है, ठीक है, वो 12 लेवल के हिसाब कुछ इस तरीके से किए हुए हैं कि लेवल 1 अभी सिस्टम प्री लॉन्चिंग में चल रहा है। प्री लॉन्चिंग से मतलब है हर एक बंदे को पता है सिस्टम अभी 50% डिस्काउंट के साथ चल रहा है, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये सिस्टम स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा लेवल 1 पे $5 लिखे हुए हैं, बाद में यही लेवल 1 आप लोगों को $10 का मिलेगा। अभी जो लेवल 2 आप लोगों को $10 का मिल रहा है, यही बाद में आप लोगों को $20 का मिलेगा। अभी लेवल 3 आप लोगों को $20 का मिल रहा है, ये बाद में यही लेवल आप लोगों को $40 का मिलेगा। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आज अगर आपने लेवल 1 ज्वाइन किया है $5 से, आज आपको यहां से $5 की इनकम आ रही है एक मेंबर से, लेकिन कल अगर सिस्टम के प्राइस डबल हो जाएंगे और जब आप मेंबर लगाओगे, तो आपको $5 नहीं आएंगे, आपको लेवल 1 से एक मेंबर से $10 आएंगे। आज अगर आप लेवल 2 पे खड़े हो, $10 से आपने एक्टिवेट किया है, लेकिन कल अगर आप लेवल 2 से एक मेंबर की भी इनकम आपके पास आती है, तो वो $10 नहीं होगी, वो $20 होंगे। इस तरीके से आप लोग आगे जाओगे। हर एक लेवल जो होता है, लेवल 1, फिर उसके बाद लेवल 2, और उसके बाद लेवल 3, हर अगला लेवल पहले के डबल के बराबर होते हैं। जैसे 5 का डबल 10 है, 10 का डबल 20 है, 20 का डबल 40 है, इस तरीके से ये आगे जाता है।
अगर पूरे लेवल्स की मैं बात कर लूं तो टोटल प्राइस अभी प्री लॉन्चिंग में 50% डिस्काउंट के साथ $20,475 बनते हैं। अगर किसी बंदे ने 12 के 12 लेवल ओपन करने हैं तो वो $20,475 इन्वेस्ट करेगा तो ही उसके 12 के 12 लेवल ओपन होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस में जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस में चले जाएगा, तो यही 12 लेवल की कॉस्ट आप लोगों को $40,950 में करनी पड़ेगी। मतलब आप लोग $40,950 इन्वेस्ट करोगे, तब जाके आप लोग यहाँ पे सिस्टम से 12 के 12 लेवल ले सकते हो। अब हम शॉर्टली यहाँ को सारे पॉइंट को स्किप करके मैं आप लोगों को सीधा सीधा लेके जाऊंगा वाइट बोर्ड पे, और वाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को S6 की पोजीशन समझाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को मेन मैट्रिक्स पे लेके जाता हूं। ये मैं प्रीव्यू मोड पे लेके जाता हूं, आप लोग यहाँ पे देख लें। ये बेसिकली वो जो S6 वाले पोजीशन है और S3 वाले पोजीशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये लेवल 1 है, इसमें 6 बंदे लगते हैं। ये देखो, एक बंदा, 2, 3, 4, 5 और 6। और जो S3 वाला है आप लोग देख सकते हो, एक बंदा, 2 बंदे और 3 बंदे। ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है वाइट बोर्ड पे। अब आप लोग देख ले, पोजीशन समझ ले। जिस बंदे के लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन करना होता है वो आप लोगों का सुपीरियर पार्टनर होता है, उसको अपलाइनर बोलते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्ट में एक और भी चीज ऐड की हुई थी कि आप लोगों को ये जो S6 के स्लॉट होते हैं, S6 के स्लॉट में आप लोगों को टीम वर्क से भी पैसा आता है। अब टीम वर्क से पैसा किस तरीके से आता है, यहाँ पे आप लोगों ने वो चीजें नोट करनी है। आपने सिस्टम में एंट्री कर दी, जैसे ही सिस्टम में आपने एंट्री कर दी, आप अपने अप्लाइनर के इस वाले पोजीशन पे बैठ गए। आपके नीचे भी 6 का मैट्रिक्स खुल गया, 6 का मैट्रिक्स खुल गया। अब आप आगे काम करोगे। जैसे ही आपने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया, तो सिस्टम में पहला मेंबर ऐड करते ही उसने आपके नीचे ये वाला पोजीशन ले लिया, और आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाला पोजीशन ले लिया। तो इस पोजीशन का पैसा किसके पास जाएगा, आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगा। अब आपने दूसरा मेंबर लगा दिया। जैसे ही दूसरा मेंबर आपने लगा दिया, दूसरा मेंबर आपके मैट्रिक्स में यहां पे लग गया और आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में यहां पे लग गया। इसका पैसा भी आपके अपलाइनर के पास चला गया। अब आपके डाउन लाइन में जब आपने 2 मेंबर लगा दिए, उन मेंबर्स में से जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला बंदा आगे अब काम करेगा। मिसाल के तौर पर, अब जब ये आगे किसी मेंबर को लगाएगा, जैसे ही उसने पहला मेंबर लगा दिया, उसके मैट्रिक्स में उसने ये वाला पोजीशन ले लिया और आपके मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन ले लिया, तो आप अपने डाउन लाइनर के अपलाइनर हो। मेंबर आपके डाउन लाइनर ने लगा दिया, लेकिन इनकम किसको हो गई, आपके पास आ गई। अब आपका डाउन लाइनर क्या करता है, दूसरा मेंबर लगाता है। दूसरा मेंबर जैसे उसने लगा दिया, उसके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली और आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली। और इस तरीके से क्या हो गया, आपके डाउन लाइनर ने मेंबर लगा दिया, लेकिन पैसा आप लोगों के पास आ गया। तो इस तरीके से इस सिस्टम पे जो नॉन वर्किंग लोग बोलते हैं कि आप लोग कभी कुछ करोगे भी नहीं तो भी आप लोगों के पास पैसा आता है, तो वो पैसा बेसिकली इस तरीके से आता है। वो इस तरीके से नहीं आता कि आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, सिस्टम आप लोगों को खुद से पैसा देगा। तो ये आप लोगों की भूल है। सिस्टम आप लोगों को उस सूरत में पैसा देगा, ठीक है, जब आपके आसपास में कोई भी बंदा वर्क करेगा। वो किस तरीके से, 6 बंदों की पोजीशन है, ये आप लोगों का मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये आप लोगों का मैट्रिक्स है। अब आपको नॉन वर्किंग पैसा कब आएगा, आपका पोजीशन नंबर 1 पे बंदा बैठा हुआ है और पोजीशन नंबर 2 पे बंदा बैठा हुआ है। ये 2 बंदे जब आगे काम करेंगे, ठीक है, तो इसके काम का पैसा आपको नॉन वर्किंग आएगा। ठीक हो गया। अब आपने आगे मेंबर लगा दिया, तीसरा मेंबर भी लगा दिया, इसका पैसा तो आपके पास आ गया। चौथा मेंबर भी लगा दिया, इसका पैसा भी आपके पास आ गया। पांचवा मेंबर भी लगा दिया, इसका पैसा भी आपके पास आ गया। छठा मेंबर लगा दिया, ये रिसाइकल हो गया, पैसा अपलाइनर के पास चला गया। अब यहाँ पे गौर कर ले, गौर करने वाली बात है ये जो ऊपर 2 बंदे बैठे हुए हैं,
इसके वर्किंग का पैसा तो आप लोगों के पास आता है, लेकिन इन दो बंदों को किसके वर्किंग का पैसा जाता है? ये भी तो सिस्टम में आए हुए लोग हैं, इनको किसका नॉन वर्किंग पैसा जाता है? तो पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 वाले बंदे अगर आगे काम करेंगे तो इसके काम का पैसा जाएगा पोजीशन नंबर 1 पे बैठे हुए बंदे के पास। पोजीशन नंबर 2 पे बंदा जो बैठा हुआ है, इसके पास किसके काम का पैसा जाएगा? पोजीशन नंबर 4 वाला आगे काम करेगा और पोजीशन नंबर 6 वाला आगे काम करेगा, तो इसका काम का पैसा जाएगा पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि ए पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसके काम का पैसा तो आपके पास आता है, ठीक हो गया। फिर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 वाले बंदों का काम का पैसा जो होता है, जैसे पोजीशन नंबर 3 और 5 वाला काम करेगा उसका पैसा पोजीशन नंबर 1 के पास जाएगा, और पोजीशन नंबर 6 और 4 वाला जब काम करेगा उसका पैसा जाएगा पोजीशन नंबर 2 के पास। लेकिन पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 वाले के पास किनके वर्किंग का पैसा जाएगा? तो गौर कर ले आप लोग। अब इसके नीचे भी दो बंदे लगेंगे, ठीक हो गया। पोजीशन नंबर 3 के नीचे भी दो बंदे लगेंगे, पोजीशन नंबर 5 के नीचे भी दो बंदे लगेंगे, पोजीशन नंबर 4 के नीचे भी दो बंदे लगेंगे, और पोजीशन नंबर 6 के नीचे भी दो बंदे लगेंगे। अब ये बंदे कहां से आएंगे? अब यहां पे गौर कर ले। अगर ये पोजीशन नंबर 1 वाला काम करता है, जैसे ही ये पहला मेंबर लेके आएगा, और आप लोगों का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि आपके 6 के 6 पोजीशन भरे हुए हैं। अब ये पोजीशन नंबर 1 वाला जो बंदा बैठा हुआ है, ये जब भी कोई मेंबर लेके आएगा वो यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे प्लेस होगा। किसके नीचे प्लेस हो गया? मेंबर ये बंदा लेके आया पोजीशन नंबर 1 पे बैठा हुआ, प्लेस किसके नीचे हो गया? पोजीशन नंबर 3 के नीचे प्लेस हो गया। अब ये बंदा जो यहाँ पे नीचे प्लेस हो गया है, जब ये आगे किसी मेंबर को लगाएगा, तो जैसे ही उसने एक मेंबर लगा दिया उसका पैसा फौरन पोजीशन नंबर 3 के पास आएगा। इस तरीके से पोजीशन नंबर 5 के पास भी जब ये एक नंबर वाला बंदा मेंबर आगे लगाता है, वो यहाँ पे स्किप होके नीचे आता है, और ये मेंबर जब आगे मेंबर लगाएगा तो इसका पैसा पोजीशन नंबर 5 के पास जाएगा। इस तरीके से अगर पोजीशन नंबर 4 वाले के पास पैसा जाना है, तो ये पोजीशन नंबर 2 वाला जब आगे काम करेगा वो पोजीशन यहाँ पे आएगा, और ये वाला बंदा जब आगे काम करेगा इसका पैसा पोजीशन नंबर 4 के पास। इस तरीके से ये सिस्टम आप लोगों को नॉन वर्किंग देता है। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, गौर कर ले, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला बंदा, आप मिसाल के तौर पर सिस्टम में आके बैठ गए इस पोजीशन पे, और आप कहते हो कि मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने सिस्टम से पैसा कमाना है। तो सिस्टम से आप पैसा उस सूरत में कमाओगे जब आपके नीचे ये दो बंदे बैठे हुए हैं। ये दो बंदे जब तक काम नहीं करेंगे आपको सिस्टम से नॉन वर्किंग पैसा नहीं आएगा। इन दो बंदों ने जैसे ही काम करना शुरू कर दिया उसका पैसा आपके पास आएगा नॉन वर्किंग। अगर आप भी सिस्टम में नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए हो, ये बंदा भी नॉन वर्किंग के लिए बैठा हुआ है, और ये बंदा भी नॉन वर्किंग के लिए बैठा हुआ है, तो आप तीनों इस सिस्टम से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। ये पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा तब कमाएगा जब ये पोजीशन नंबर 3 वाला काम करेगा और पोजीशन नंबर 5 वाला काम करेगा, ठीक हो गया। पोजीशन नंबर 3 वाला तब कमाएगा जब पोजीशन नंबर 1 वाला काम करेगा, पोजीशन नंबर 5 वाला तब कमाएगा जब पोजीशन नंबर 1 वाला काम करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर एक बंदा एक दूसरे पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हर एक बंदा एक दूसरे की हेल्प करता है। यहाँ पे लालच नहीं चलेगी कि आपने किसी मेंबर को लगा दिया और लगाने के बाद उसको छोड़ दिया कि भाई तू जाने और आपका काम जाने, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग 100 मेंबर लगाओगे, 100 मेंबर से आप लोगों ने अगर एक मर्तबा कमा लिया, वो मेंबर आगे काम नहीं करता, उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एक मेंबर आ गया जो आगे काम करता है, जब वो काम करता है तो वो आप लोगों को बार बार इनकम देता है। वो कैसे देता है, एक मर्तबा आप लोगों को मैं वो दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद हम सिस्टम को क्लोज कर लेंगे। आज का जो सेशन होगा उसको हम वो क्लोज कर देंगे। मिसाल के तौर पर
آپ کسی کے اپلائنر ہو, ٹھیک ہے, اس نے آپ کے نیچے اکاؤنٹ لگا دیا, یہ والی پوزیشن اس کی بن گئی. اب وہ بندہ جو ہے آگے کام کر رہے, پہلا ممبر اس نے لگا دیا, یہ پوزیشن لے لیا, آپ کے نیچے یہ پوزیشن آ گیا, پیسہ آپ کے پاس آ گیا. دوسرا ممبر اس نے لگا دیا آپ کے نیچے, اس نے یہ والی پوزیشن لے لی, پیسہ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ کا ممبر آگے کام کر رہے, ایکٹیو ہے. تیسرا ممبر لگا دیا, چوتھا ممبر لگا دیا, پانچواں ممبر لگا دیا. اب جیسے ہی وہ چٹا ممبر لگائے گا, تو چٹا ممبر جیسے ہی اس نے لگا دیا, یہ یہاں سے نکل گیا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ گیا, یہاں پہ آ کے ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ پھر آپ کے نیچے اس نے ایک مرتبہ پھر پوزیشن لے لی. اب ٹھیک ہو گیا, آپ کا یہی ممبر آگے اگر 2 ممبر لگائے گا تو وہ یہاں پہ پلیس ہوگا, اور اس کی انکم بھی آپ لوگوں کے پاس آئے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ایک ممبر بھی اگر کام کرتا ہے نا, تو وہ جب بھی اس کا کوئی لیول ریسائیکل ہوگا, جب بھی وہ کوئی ممبر لگائے گا, جب بھی وہ آگے کوئی لیول کرے گا, وہ آپ لوگوں کو بار بار انکم دیتا رہے گا, بار بار پر لائف ٹائم وہ آپ لوگوں کو انکم دیتا رہے گا. یہ سسٹم اس طریقے سے ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ آئے ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے, تو وہ کچھ آپ لوگوں نے اس طریقے سے حاصل کرنا ہے کہ اس سسٹم پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. وہ کام آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنے, آپ لوگوں نے اچھے اچھے نیٹ ورکر ڈھونڈنے ہیں, وہ والے نیٹ ورکر جو آپ لوگوں کے لیے آگے کام کر سکتے ہو. میں آپ لوگوں کو مثال دے دیتا ہوں. لیول 1, اگر کوئی بندہ لیول 1 $5 سے اس نے شروع کر دیا, وہ 6 ممبر لے کے آتا ہے, تو 6 ممبر میں سے اس کے پاس کتنے ممبر کا پیسہ جاتا ہے؟ لیول 1 پہ پہلا ممبر لگتا ہے, اس کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا, آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ممبر لگا دیا, اس کا پیسہ بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا. پھر اس کے بعد تیسرا ممبر لگا دیا, اس کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا. چوتھا لگا دیا, اس کا پیسہ بھی آپ لوگوں کے پاس آ گیا. پانچواں لگا دیا, اس کا پیسہ بھی آپ لوگوں کے پاس آ گیا. چٹا لگا دیا, اس کا پیسہ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس چلا گیا. آپ لوگ دیکھ لے, ایک طرف لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کا والٹ, دوسری طرف لکھا ہے اپلائنر یا اپلائنر کے ٹیم کا والٹ. ہر لیول کا اس طریقے سے سیکوینس ہوتا ہے. لیول 1 میں سے 3 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا, 3 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے لیول 2 سے آپ لوگوں کے پاس 3 بندوں کا پیسہ آئے گا, 3 بندوں کا پیسہ اپلائنر کے پاس جائے گا. لیول 3 میں سے آپ لوگوں کے پاس 2 بندوں کا پیسہ آئے گا, 1 بندے کا پیسہ اپلائنر کے پاس جائے گا. لیول 4 میں سے 3 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا. لیول 5 میں سے 3 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا. لیول 6 میں سے 2 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا, اور باقی 1 بندے کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس چلا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ پوزیشن سمجھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ 6 ممبر لگاؤ گے تو 6 کے 6 بندوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا. اگر اس طریقے سے ہوتا تو سسٹم میں سے صرف وہ بندہ کما لیتا جو صرف اور صرف ممبر لے کے آتا. وہ بندہ کبھی بھی نہیں کما سکتا کہ جس کے پاس ممبر نہیں ہوں گے, کیونکہ سسٹم میں نان ورکنگ انکم بھی آتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کسی اچھے ٹیم میں جڑے ہوئے ہو, آپ کا اپلائنر ایکٹیو ہے, اس کے اپلائنر کے ٹیم میں اور ممبر ایکٹیو ہے, تو آپ لوگوں کو بغیر کسی کچھ کیے ہوئے بھی, جن میں 6 سلاٹ لگتے ہیں, یہ 6 پوزیشن والے, یہاں سے آپ لوگوں کو نان ورکنگ انکم بھی سسٹم کی طرف سے آتی ہے. اب لیکچر کا یہاں پہ میں اختتام کر لوں گا, ٹھیک ہے, اور آگے میں چلوں گا. 10-15 منٹ جو بھی ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کو میں سوال و جواب کو دوں گا. جس بندے نے جو بھی سوال کرنا ہے